آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک مسلمان دن بھر میں کم سے کم 52 مرتبہ کیا دہراتا ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر آج ہم سڑک پر نکل کر لوگوں سے اس کا اصل مطلب پوچھ لیں تو شاید زیادہ تر لوگ نظریں چرا لیں گے۔ یہ عجیب بات ہے نا، ہم دن میں 5 وقت ایک کلام پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی سے واقف نہیں ہیں۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس بہت بڑے خزانے کا نقشہ ہو، آپ اس نقشے کو روز دیکھتے ہو، بار بار دہراتے ہو، لیکن خزانہ حاصل کرنے کے لیے کبھی زمین کی کھدائی ہی نہ کریں۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے اور تصور کیجئے آپ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن کیا آپ کا دل خاموش ہے؟ آج ہم اس فاصلے کو ختم کریں گے، آج ہم ان معنوں پر غور کریں گے جو ہماری نماز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ سورہ الفاتحہ، جسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، اس میں محض 7 آیتیں ہیں لیکن اس میں پوری قرآن کا خلاصہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ عظیم سورہ نازل ہوئی تھی تو شیطان تکلیف سے چیخ اٹھا تھا؟ ذرا سوچئے جو سورہ شیطان کو اس قدر ہلا سکتی ہے۔ چلیے اس کے ایک جملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں حمد کا مطلب صرف تعریف نہیں ہے۔ فرض کیجئے آپ ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تبھی کوئی آتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کو کھانا دیتا ہے، اچھے کپڑے دیتا ہے، اس وقت آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کے اندر سے ایک گہرا سچا شکریہ نکلے گا نا؟ تو پھر دیکھیے جس رب نے آپ کو یہ زندگی دی، جو بن مانگے آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کے سامنے ہم محض زبان سے الحمدللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا دل خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی وہ احساس تھا جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھی۔ تو ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے لیے تو جنت کی ضمانت ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی ہے سچی نماز اور یہی ہے سچا الحمدللہ۔ آج کے بعد ہم جب بھی نماز شروع کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ، تو یہ صرف ایک رسم نہیں ہوگی، یہ سبق ہمارے ذہنوں میں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس کے بعد نماز ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے پہلے پڑھتے تھے۔ آپ کی نماز کا مزہ بدل جائے گا اور آپ ہر لفظ کی لذت کو محسوس کریں گے۔ تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب میں نے اس واقعے پر گہرائی سے غور کیا مجھے تب سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شکر گزاری کا ایک مضبوط احساس تھا کہ وہ خود کو روک ہی نہیں پاتے تھے۔ اپنے دل کے اس احساس کو سکون پہنچانے کے لیے وہ نماز کے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اور یہی ہے سچی حمد۔ اب ذرا کچھ پلوں کے لیے رکیے اور اپنے آپ سے ایک بہت ہی سنجیدہ سوال پوچھیے۔ آپ نے نماز پڑھنا کب شروع کی تھی؟ 15 یا 20 سال ہو گئے ہوں گے۔ آپ سالوں سے اپنی نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین کہتے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان سالوں میں آپ نے کتنی بار اس قسم کی شکر گزاری محسوس کی ہے؟ کتنی بار آپ نے اللہ کے ساتھ وہ حقیقی جذباتی تعلق محسوس کیا ہے؟ اکثر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب حالات اچانک بہت اچھے ہو جاتے ہیں یا جب ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، صرف تب ہمارے اندر سے یہ احساس ظاہر ہوتا ہے، تب ہم بے اختیار کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ لیکن جب زندگی ایک معمولی ڈیر پر آ جاتی ہے، جب سب کچھ ایک روٹین بن جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد بکھری ہوئی اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کھلی تو ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھنا بھول جاتے ہیں اور شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ذرا اسلام کے شروعاتی دور کے بارے میں سوچئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کتنی مشکل تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی حمد تعریف ہم سب سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے، تو مکہ کے کافروں نے آپ کی مبارک کمر پر اونٹ کی اوجڑی علائش لا کر ڈال دی۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں؟ اسے الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس گندی بدبو کو تصور کرنے کی کوشش کریں، وہ اتنی گندی تھی کہ وہاں سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک مشکل امتحان کا سامنا کیا، اپنوں کو کھویا، ظلم سہے، بے انتہا تکلیفیں برداشت کی، لیکن ان سب کے باوجود شکر گزاری کا جو معیار انہوں نے قائم کیا وہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے ظلم سہے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کی اتنی حمد بیان کرتے تھے کہ وہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں جنہیں الحمدللہ کہنے کی بھی
कोई वजह समझ नहीं आती। शायद असल मसला हमारी ज़हनियत का है। हम अपनी रोजमर्रा की नेमतों को इतना मामूली समझ लेते हैं कि हमारा दिल शुक्र महसूस करना ही छोड़ देता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास शुक्र अदा करने के लिए वजहें कम हैं? चलिए अपने ही जिस्म पर गौर करते हैं। आपकी ज़बान गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर 8000 से ज्यादा टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद हैं। दुनिया के हर मुल्क का हर खाने का जायका ये छोटी सी जबान चख सकती है। क्या आपने कभी इसके लिए शुक्र अदा किया है? अब अपनी आंखों को लीजिए, एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करके गुजारने की कोशिश कीजिए। आपको इस नेमत की असल कीमत समझ आ जाएगी। क्या आपने कभी अपने पलकों के झपकने पर गौर किया है? ये आपकी आंखों को सिर्फ धूल से नहीं बचाती, बल्कि साइंस बताती है कि हर बार पलक झपकने से आपके आंख के रेटिना पर तस्वीर रिफ्रेश हो जाती है, ताकि आपका दिमाग एक साफ और बिना रुके तस्वीर देख सके। अल्लाह पाक ने इस पलक झपकने को हमारे इख्तियार से बाहर रखा है, क्योंकि अगर यह हमारे हाथ में होता तो हम तो काम में मशगूल होकर पलक झपकना ही भूल जाते। मैं आपको एक और कमाल की मिसाल देती हूँ। आप एक बहुत महंगा कैमरा उठाएं और उसे लेकर दौड़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा हिल रही है, लेकिन जब आप खुद दौड़ते हैं तो क्या आपके सामने की दुनिया हिलती है? नहीं ना। आप जिस चीज को भी देखते हैं वो बिल्कुल साफ और रुकी हुई दिखाई देती है। अल्लाह पाक ने हमारे दिमाग और आंखों में एक जबरदस्त सिस्टम रखा है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं बना सकती। तो क्या हम इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे? जब हम नमाज में कहते हैं रब्बिल आलमीन, तो इस लफ्ज रब का असल मतलब क्या है? रब वो है जो पालता है, परवरिश करता है और अपनी तख्लीक को एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचाता है। एक सेब के छोटे से बीज को देखिए, अल्लाह पाक उसे जमीन के अंधेरों में पालता है और फिर देखते ही देखते वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है और फिर उस पर फल लगने लगते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ शुरू होना शुरू हो जाते हैं। उसी रब ने हमें एक नुत्फे से बनाया, फिर वो बच्चा, फिर जवान, फिर वो बुढ़ापे तक हमारी परवरिश कर रहा है। वो सिर्फ हमारा रब नहीं है, वो एक छोटे से एटम से लेकर करोड़ों गैलेक्सीज हर चीज का रब है। जरा अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का तस्वुर कीजिए। हम इस वक्त स्पेस में सफर कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो लाइट की स्पीड से चले, यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, तो इतनी भयानक स्पीड से चलने के बावजूद आपको सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। सुबहान अल्लाह, कितनी अजीम है उसकी रबूबियत। सूरह इब्राहिम में अल्लाह पाक फरमाता है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो कभी शुमार न कर सकोगे। यकीनन इंसान बहुत ही नाशुक्रा और बेइंसाफ है। ऐ मेरे अजीजों, आज जब आप अपनी नमाजों के लिए खड़े हो और जबान से कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इन सारी नेमतों को, इन आँखों को, इस कैमरे से भी बेहतरीन निजाम को और इस पूरी कायनात के मालिक को अपने जहन में रखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी नमाज वैसी नहीं रहेगी जैसे वो पहली थी। आपकी नमाज का मजा बदल जाएगा और आपका दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाएगा। जब हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला, तो अपने जहन को सिर्फ इसी एक दुनिया तक महदूद मत कीजिएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, मछलियों का अपना एक अलग जहान है जो समंदर की गहराइयों में आबाद है, जानवरों का जहान, परिंदों का जहान, पौधों का जहान, यहाँ तक के साइंस कहती है कि हर एक इंसान अपने आप में खुद पूरा एक जहान है। दुनिया में मौजूद ऐसे लाखों करोड़ों जहान हैं और हमारा रब उन सबको कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम एक ऐसे रब के सामने होते हैं जिसके पास इस कदर लामहदूद ताकत है। लेकिन यहाँ एक बात है जो हमें हिला कर रख देती है। रब का मतलब है जो हमें एक मरहले से, स्टेज से दूसरे मरहले तक बदलता है। अब जाहिर है हर तब्दीली आसान तो नहीं होती, कभी कभी ये तब्दीली मुसीबत और आजमाइश के तौर पर भी आती है, हमें तराशने के लिए, हमें पुख्ता करने के लिए। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो दिल में एक खौफ सा पैदा होता है कि क्या मेरे साथ भी कोई ऐसी सख्त तब्दीली आने वाली है, क्या मेरी अगली मंजिल कोई कड़ी आजमाइश है। लेकिन सुभान अल्लाह, कुरान की खूबसूरती देखिए। रब्बुल आलमीन के जलाल और खौफ के फौरन बाद अल्लाह पाक अगली ही आयत में क्या फरमाता है? अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। जैसे अल्लाह पाक हमसे कह रहा हो कि ऐ मेरे बंदे, खौफजदा ना हो, घबरा मत। वो जो तुझे एक मरहले से दूसरे मरहले में बदल रहा है वो तुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी रहमत एक माँ की रहमत से भी कहीं ज्यादा, बल्कि लामहदूद है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत को बताने के लिए 2 अलग अलग अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? रहमान और रहीम, इन दोनों में क्या फर्क है? उलमाए तफसीर हमें इसका बहुत ही खूबसूरत मतलब बताते हैं। और रहमान का मतलब है अल्लाह की वो रहमत जो दुनिया के हर मखलूक के लिए है, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। जरा सोचिए, जब आसमान से बारिश होती है
तो क्या वो सिर्फ मोमिनों के घर पर बरसती है? नहीं, वो हर जगह बरसती है। जब सूरज निकलता है तो वो हर किसी को फायदा पहुंचाता है, चाहे कोई अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो। ये अल्लाह पाक की रहमान वाली सिफत है। लेकिन अर्रहीम अल्लाह पाक की वो खास रहमत है जो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए है। ये वो रहमत है जो आखिरत में काम आएगी, जो हमारे गुनाहों को माफ करवाएगी और हमें सीधा जन्नत तक ले जाएगी। दुनिया में तो हर किसी ने उसकी रहमत का फायदा उठाया, लेकिन आखिरत में रहीम की ये खास रहमत सिर्फ उसी पर होगी जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा। रहमान और रहीम की उस लामहदूद रहमत का जिक्र करने के बाद अल्लाह पाक हमें एक बहुत बड़ी और खौफनाक हकीकत की तरफ लाता है, हमारी आंखें खोलता है। हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का, यानी कयामत के दिन का मालिक। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने यहाँ ये क्यों नहीं कहा कि वो दुनिया का मालिक है? दुनिया का मालिक तो वो है ही, लेकिन इस दुनिया के बहुत से इंसानों ने भी तो अपने झूठी बादशाहत का दावा कर रखा है। किसी के पास दौलत की ताकत है, किसी के पास बादशाहत का नशा है, तो कोई अपने रुतबे के गुरूर में है। लेकिन जब वो दिन आएगा, यौमे हश्र का दिन, तो दुनिया के सारे गुरूर, सारे ताज, सारे तख्त मिट्टी में मिल जाएंगे। उस दिन आसमान चीर दिया जाएगा, पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे और सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, आज किसकी बादशाहत है? पूरी कायनात में एक भयानक खामोशी होगी। कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी आंख उठाने की हिम्मत ना कर सकेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाएगा, सिर्फ एक अल्लाह है जो सबसे जबरदस्त है। लेकिन अब जरा कुरान की तरतीब की खूबसूरती और अपने रब की मोहब्बत देखिए। अल्लाह पाक ने मालिक यौमिद्दीन को अर्रहमान रहीम के ठीक बाद क्यों रखा? ताकि उसका बंदा खौफ से मायूस न हो जाए। अल्लाह पाक हमें बता रहा है कि ऐ मेरे बंदे, जिस दिन तू मेरे सामने अपनी जिंदगी भर के गुनाहों और अमाल को लेकर खड़ा होगा, उस दिन मैं तेरा सिर्फ सख्त बादशाह और जज नहीं हूँगा, बल्कि मैं तेरा रहमान और रहीम भी हूँगा। वो दिन यकीनन इंसाफ का दिन होगा, लेकिन मेरे अजीजों, वो इंसाफ एक ऐसे रब का होगा जिसकी रहमत उसके गजब पर भारी है। तो आज के बाद आप जब भी अपनी नमाज में मालिक यौमिद्दीन कहें, तो आपका दिल दोनों कैफियतों के बीच होना चाहिए। एक तरफ अल्लाह पाक का वो जलाल और खौफ हो कि एक दिन मुझे अपने रब के सामने पाई पाई का हिसाब देना होगा, और दूसरी तरफ उसकी रहीम वाली सिफत से इतनी गहरी उम्मीद हो कि जब मैं रोकर उस दिन उससे माफी मांगू तो वो मुझे मायूस नहीं लौटाएगा, वो मुझे माफ फरमा देगा। अब जरा यहाँ कुरान की एक बहुत ही खूबसूरत बात पर गौर कीजिए। सूरह अल फातिहा की शुरुआत से लेकर अब तक हम अल्लाह के बारे में थर्ड पर्सन में बात कर रहे थे। वो अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो जो रहमान और रहीम है, वो जो इंसाफ के दिन का मालिक है। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह की इन अजीम सिफात का इकरार कर लेते हैं, हमारे दिल की कैफियत अचानक बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि वो रब तो हमारे बहुत करीब है, और फिर अचानक नमाज में खड़े होकर हमारे अल्फाज बदल जाते हैं। हम सीधे अपने रब से मुखातिब हो जाते हैं। हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब जरा इस लफ्ज इय्याका, सिर्फ तेरी की ताकत को महसूस कीजिए। जब एक इंसान नमाज में खड़ा होकर ये दावा करता है, तो वो दरअसल दुनिया के सारे झूठे खुदाओं को, सारे बुतों को तोड़ रहा होता है। वो बुत सिर्फ पत्थर के नहीं होते, वो हमारी ईगो, अना का बुत हो सकता है, दौलत की लालच हो सकती है। जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, तो हम ऐलान करते हैं कि ऐ मेरे रब, मेरा सर दुनिया की किसी ताकत, किसी बॉस या किसी मजबूरी के आगे नहीं झुकता। मेरा सर अगर झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी जात के आगे। लेकिन इसके फौरन बाद इंसान अपनी कमजोरी और अपनी हकीकत को पहचान लेता है। वो जान लेता है कि उसके अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक सजदा भी कर सके, और वो फौरन पुकार उठता है वइय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। या अल्लाह, मैंने ये दावा तो कर दिया कि मैं तेरी इबादत करूंगा, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे आसपास शैतान है, मेरी अपनी नफ्स की ख्वाहिशें हैं, दुनिया के धोखे हैं। मेरे रब, मैं तेरी मदद के बिना तेरी इबादत भी नहीं कर सकता। मुझे सीधा रास्ता चुनने के लिए भी तेरी ही मदद चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बच्चा एक भीड़ भरे बाजार में अपने वालिद का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वो जानता है कि अगर उसने यह हाथ छोड़ा तो वो इस भीड़ में खो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वइय्याका नस्तईन कहकर हम अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि ऐ अल्लाह, इस दुनिया की भीड़ में, इस फितनों के दौर में मेरा हाथ थाम ले, मुझे अकेला मत छोड़ना, वरना मैं भटक जाऊंगा। तो ऐ मेरे अजीजों, अगर आप अगली बार सजदे में जाएं, तो इस आयत को अपने दिल में महसूस कीजिएगा। आपका सजदा सिर्फ एक जिस्मानी कसरत नहीं रहेगा, बल्कि ये आपके रब से मदद की एक पुकार बन जाएगा, एक ऐसी पुकार जिसे वो 7 आसमानों के ऊपर भी सुनता है। हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस आयत पर सीन चेंज होता है। अब हम अल्लाह पाक से डायरेक्ट बात करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नोटिस करें, हमने मैं नहीं कहा, हमने हम कहा। जब हम नाबुदू, हम इबादत करते हैं कहते हैं, तो आप अकेले नहीं होते, आप उस पूरी उम्मत के साथ जुड़ जाते हैं जो उस वक्त नमाज पढ़ रही है। हत्ता के कायनात का हर जर्रा जो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, आप उसके साथ शामिल हो जाते हैं। ये आयत लॉयल्टी का ऐलान है कि या अल्लाह मुझे जॉब चाहिए, शिफा चाहिए या सुकून चाहिए, मैं मांगूंगी सिर्फ तुझसे। ये आयत गुलामी से आजाद करती है। हम दुनिया के आगे नहीं झुकते क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। अब जब हमने अल्लाह की तारीफ कर ली, अपना ईमान जाहिर कर दिया, अब बारी आती है मांगने की। और हम क्या मांगते हैं? पैसा, शोहरत नहीं, बल्कि हम कहते हैं اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। दुनिया में हजारों रास्ते हैं, हजारों फिलोसफीज हैं, हर कोई कहता है मैं सही हूँ। हमें इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए अल्लाह की गाइडेंस चाहिए। सिरातल मुस्तकीम, ये वो रास्ता है जो बिना किसी मोड़ के सबसे शॉर्ट और डायरेक्ट मंजिल तक पहुंचाता है। नमाज में ये दुआ करते वक्त सोचिए कि आप अपने लाइफ के हर डिसीजन में अल्लाह की गाइडेंस मांग रहे हैं। आखिरी आयत हमें बताती है कि वो रास्ता किसका है, उनका जिन पर तूने इनाम किया, प्रॉफिट, सिद्दीकीन, ना कि वो जो भटक गए। सूरे फातिहा कोई मामूली दुआ नहीं है, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक गुफ्तगू है। हदीस में आता है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सोचिए, नमाज में अल्लाह पाक आपको जवाब दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज में वो कनेक्शन पैदा हो, तो अगली बार जब आप सूरे फातिहा पढ़ें तो इन मीनिंग्स को याद रखें। अगर इस वीडियो ने वाकई आपके दिल को छुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके होस्ट अदीबा मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।